So, good afternoon, everyone. So, today we'll be studying about kinematics of circular motion. Okay. So, our topic is today kinematics of circular motion. I hope all will easily understand. This is one of the most important topics in entrance as well as school. हर जगह में काफ़ी यूज़ आएगा. So, first of all, when we are understanding about kinematics of circular motion, we have to refer to velocity. And this velocity is of two types actually. Okay, this velocity is of two types. First one is your angular velocity. First one is your angular velocity, and the second one is your linear velocity. Linear velocity, everyone is aware. What is angular? That has to be taught. Okay, so angular velocity को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. Linear velocity, everyone knows, displacement by time. तो rate of change of position, you can say. This one is what? Rate of change of position. This one is rate of change of position. And angular velocity is what? Rate of change of angular position. और कुछ नहीं. Rate of change of angular position. ठीक है ना? So that is rate of change of angular position. तो कैसे उसको रेफर करते हैं? I am showing you. Suppose let us take a circle. ठीक है? I have taken a circle. अब इसमें I will represent. Suppose this is my center. Suppose this is my center. ठीक है ना? So let me draw two axes. One is your x-axis and another one is your y-axis. ठीक. So कोई भी, suppose मैं सर्कल में घूम रहा हूं. This is my center O. Suppose I am starting from this point. X-axis से मैं चालू किया and I am moving. Okay, I am moved. I reached till point P. मान लेते हैं I reached point P. I started moving and थीटा घूमने के बाद I reached point P. उसके बाद एक छोटे से टाइम में मैं पॉइंट P से पॉइंट P डैश पहुंचता हूं. मान लो I am reaching point P dash after a small interval time. So I am writing here, in small interval of time, we reach from P to P dash. और ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को हम लोग डी टी लेते हैं. कोई भी चीज़ स्मॉल होता है तो उसके आगे हम लोग डी लगाते हैं. ठीक है ना? डी रेफर्स टू स्मॉल. सो जो स्मॉल एंगल का चेंज आएगा दैट विल बी ऑल्सो हाउ मच? डी थीटा. तो स्मॉल एंगुलर चेंज इज हाउ मच? स्मॉल चेंज इन एंगुलर पोजिशन इज विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? डी थीटा. एंड वी कैन से ओमेगा, जो कि एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वी. सो ओमेगा कैन बी कंसिडर्ड एज, मैंने बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन. दिस मीन्स व्हाट? चेंज इन एंगुलर पोजिशन by change in time. Change in angular position by change in time. So it can be written as what? D theta by dt. So this is the formula of angular velocity. Okay, please note it down. Next, so angular velocity हम लोग को मिलता है d theta by dt. It can be considered like this. And linear velocity, all of you know, rate of change of position. So it is ds by dt. This one is linear and ये अपना क्या है? angular है. Very easy to remember. ठीक है ना? Next, how to determine? This is how we determine the angular speed or magnitude of angular velocity can be determined from d theta by dt. But angular velocity is a vector quantity. तो उसका हमें डायरेक्शन भी जानना है. Angular velocity is a vector quantity. So I need to know its direction also. हमेशा याद रखना, द डिरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्क्रू लॉ. डिरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिटरमाइंड बाय स्क्रू लॉ. अब सोच रहे हो कि स्क्रू लॉ क्या है? सपोज आई एम टेकिंग अ सर्कल लाइक दिस. ठीक है ना? सपोज आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन. आई एम मूविंग क्लॉकवाइज. सपोज मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं. टेक योर राइट हैंड. स्क्रू लॉ में व्हाट इज यूज्ड? राइट हैंड इज यूज्ड.
टेक योर राइट हैंड, या तो राइट एक स्क्रू लो, एक स्क्रू को मिड में रखो और किस तरफ घुमाना है, हमें क्लॉकवाइज घुमाना है. व्हेन द स्क्रू इज रोटेटेड क्लॉकवाइज, स्क्रू किस तरफ आगे बढ़ेगा, इनसाइड. सो यहां पे क्या लिखेंगे, व्हेन स्क्रू रोटेटेड क्लॉकवाइज, रोटेटेड क्लॉकवाइज, इट मूव्स वेयर, इनसाइड. इट मूव्स into the plane of paper, into the plane of paper, अंदर की तरफ जाएगा. तो उसको रिप्रेजेंट कर कैसे करते, into the plane of paper is represented as क्रॉस साइन, ऐसा. ओके, इसका मतलब ओमेगा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल बिकम व्हाट, इज इक्वल्स टू लाइक दिस, क्रॉस करके सर्कल उसके तरफ, इसका मतलब into the plane of paper. But had it been anti-clockwise, suppose let me again take a circle, okay, and मान लो had it been anti-clockwise, anti-clockwise in the sense इस तरफ, तो now where I am moving the velocity is anti-clockwise, तो यहाँ पे again circle है, anti-clockwise के तरफ स्क्रू को घुमाओ, ओ पे रख के स्क्रू को anti-clockwise घुमाओ, तो स्क्रू ड्राइवर खुलने जैसा दिखता है ना. व्हेन इट ओपन्स अप, किधर उठता है स्क्रू, ऊपर की तरफ उठता है. सो व्हेन स्क्रू रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, इट मूव्स अप. तो फिर डायरेक्शन क्या हो जाता है, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, एक डॉट देना उसके बाहर में सर्कल. इट मीन्स व्हाट, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. क्लियर विद द फंडामेंटल्स. सो इस तरह से हम लोग को जानना पड़ता है द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है ना. सो नाउ दिस इज क्लियर. और लीनियर वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बता दिया है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड. क्लियर, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड. इसके लिए अगेन आई हैव टू ड्रॉ अ शेप, जो कि एक सर्कुलर शेप होगा. ओके, दैट इज डन. नाउ इस केस में हमें क्या करना है, सपोज ये मेरा सेंटर है, ठीक है ना, दिस इज माई सेंटर. तो हमने लिया सेंटर, सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी माई सेंटर. अभी यहां पे हम लोग, मैंने जैसे बनाया था, आई कैन ड्रॉ वन एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है. आई कैन ड्रॉ वन वाई एक्सिस ऑल्सो, ठीक है ना, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस बना. एंड एज आई हैड सेड, सपोज मान लो कोई एक पोजीशन है P, दिस पोजीशन इज कंसिडर्ड P, तो ये एंगल मेरा क्या होगा, थीटा. सो व्हेन आई एम रीचिंग फ्रॉम P टू P डैश, तो वो जो एक्स्ट्रा होगा दैट इज व्हाट, डी थीटा, ठीक है ना. सो दैट लीनियर डिस्टेंस फ्रॉम P टू P डैश कितना होगा, लीनियर डिस्टेंस फ्रॉम P टू P डैश. मान लो रेडियस इज नथिंग बट R, रेडियस दिया हुआ है हाउ मच, R. हमें पता है R इंटू एंगल इज नथिंग बट P टू P डैश. ये जो लेंथ है P से P डैश का लेंथ, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, डेल्टा S, क्योंकि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, P से P डैश जो हम मूव कर रहे हैं वो दैट इज एक्चुअल पाथ. सो रिलेशन कैसा होता है, डेल्टा S विल बी रेडियस इंटू डी थीटा. वी राइट लाइक दिस और नॉट, ये तो क्लास 9-10 में पढ़े हैं. कभी भी जब लीनियर पोजीशन निकालते हैं, दैट इज व्हाट, रेडियस इंटू द एंगल कवर्ड अप. सो दिस इज द रिलेशन डेल्टा S इक्वल्स टू R डी थीटा. सो नाउ ऑल ऑफ यू नो डेल्टा S इज इक्वल्स टू R डेल्टा थीटा. डेल्टा का मतलब भी डी ही होता है, ये ट्राइंगल का मतलब होता है डेल्टा, एंड दैट इज ऑल्सो डी ओनली. तो डी एस इज इक्वल्स टू आर डी थीटा. नाउ व्हाट ऑल ऑफ यू डू, डिवाइड बाई डी टी, डिवाइड बाई डी टी. तो दैट बिकम्स व्हाट, डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी. तो डी एस बाई डी टी अपना कौन था, वेलोसिटी v, r तो था ही, डी थीटा बाई डी टी कौन था, ओमेगा. तो v is equals to r omega. This is the relation. Understood? V was ds by dt, linear displacement, rate of change of linear displacement, and omega was rate of change of angular displacement. I think fundamental is clear to everybody. Clear? Next, we'll head towards acceleration.
will head towards acceleration. Okay, we will move towards acceleration. एक्सेलरेशन भी एज ऑल ऑफ यू नो दो तरह के हो सकते हैं, लीनियर हो सकता है, एंगुलर हो सकता है. तो सेम आई विल बी टेकिंग लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. दो तरह का हमने ले लिया. तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, लीनियर तो ऑल ऑफ यू नो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. What is angular acceleration? Rate of change of angular velocity. That is what? Rate of change of angular velocity. Are you understanding? So that rate of change of angular velocity is known as angular acceleration. तो अभी लेते हैं linear acceleration को हम लोग represent करते हैं a से. Angular acceleration is represented by alpha. तो as I said, a is nothing but rate of change of linear velocity. तो dv by dt हो जाएगा, ठीक है ना. एंड ऑल ऑफ यू नो a इज इक्वल्स टू d बाई dt. v के जगह में व्हाट आई कैन राइट, ds बाई dt. अभी थोड़ा टाइम पहले पढ़ा है. वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज d स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन. सिमिलरली अल्फा जो है अपना, अल्फा वाज व्हाट, d ओमेगा बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो ओमेगा तो हमें ऑलरेडी पता है क्या था, d theta by dt, rate of change of angular position. तो अल्फा विल बिकम व्हाट, d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर पोजीशन. ठीक है ना. सपोज मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा, दिया होगा थीटा इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5. अभी डेरिवेटिव के वीडियोस पहले ऑलरेडी भेज चुके हैं, ऑल ऑफ यू नो अबाउट डेरिवेटिव्स. नाउ पूछा होगा अल्फा निकालो, ओमेगा निकालो. तो ओमेगा इज व्हाट, डी थीटा बाई डी टी. तो इसकी डेरिवेटिव करो, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, 2 रहा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी व्हाट, 2t, क्योंकि 2 आगे आएगा, t टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 5, 5 तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होगा, 0. सो दिस बिकम्स व्हाट, 3t स्क्वायर प्लस 4t. नाउ आई नीड अल्फा. Alpha is again what, d omega by dt. So alpha is written d omega by dt. मतलब ओमेगा जो भी आंसर आया उसका वापस डेरिवेटिव करो आप. तो 3 रहा, t स्क्वायर डेरिवेटिव इज हाउ मच, 2, t टू द पावर 2 माइनस 1, और 4t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1. सो दिस वन बिकम्स 6t प्लस 4. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ अल्फा. ये हो गया आपका ओमेगा. हाउ टू डिटरमाइन फ्रॉम थीटा, यू अंडरस्टैंड. अगर थीटा दिया है तो ओमेगा एंड अल्फा कैन बी डिटरमाइंड लाइक दिस. आई गेस आई एम क्लियर टू एवरीबडी एंड ट्रांसपेरेंट इनफ. नेक्स्ट हम लोग जब आगे पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग में जानेंगे. सो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. As angular velocity, angular acceleration is also a vector quantity. So इसकी डायरेक्शन भी हमें जाननी है. तो थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ. डायरेक्शन जो है अल्फा का, दैट इज ऑल्सो, अभी हम लोग को लास्ट केस में ओमेगा कैसे पता चला, ओमेगा क्या था सर्कुलर मोशन में, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर था जब क्लॉकवाइज, एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर था जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे. सो दैट वाज एक्चुअली परपेंडिकुलर और नॉट, है कि नहीं, दैट वाज ऑल्सो परपेंडिकुलर. मतलब एक छोटा सा यहाँ पे शेप करके बता देते हैं आपको. 2 सर्कल ले लेता हूँ, एक यहाँ पे ले लिया, सॉरी इरेजर, 1 more circle let me take. Sorry, wait a second, let me make a bigger circle. Okay, I have taken 2 circles. ठीक. Now what I'll be doing, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो डायरेक्शन जो इसका होता है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर. क्यों होता है मैं समझाता हूँ. इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर. तुम लोग सोचोगे ऐसा क्यों बोले. अगर मैंने बोला था तुम्हें, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पे मूवमेंट कैसा था, क्लॉकवाइज. तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसा था,
डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जब क्लॉकवाइज स्क्रू घुमाओगे तो स्क्रू अंदर जाएगा, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर लेंगे तो उस समय पे ओमेगा कहाँ हो जाएगा, डॉट, और वो भी बाहर, क्योंकि जब स्क्रू ड्राइवर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, थोड़ा सा ब्लंडर हो गया यहाँ पे, दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एरो इस तरफ होना चाहिए, सॉरी, ये एरो इस तरफ एंड ये एरो इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना। हाँ, तो ओमेगा कैसे हो रहा है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, जब हम लोग खोल रहे हैं कोई स्क्रू बाहर निकल रहा है। बट अभी अल्फा कैसे परपेंडिकुलर हुआ वो बताना चाहते हैं तुम लोग को। तो अल्फा के बारे में जानने के लिए सपोज मान लो ऐसा हो रहा है, एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग, इसको मैं ले लेता हूं केस 1 और इसको ले लेता हूं केस 2। सपोज यहां पे मैं दो डिस्टिंक्शन करूंगा, केस 1 एंड केस 2, तो दिस इज माय केस 1 एंड यहां पे अपने केस 2 लिखते हैं। सपोज इन केस 1 दिया हुआ है तुम्हारा एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, यहां पे दे दिया है एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग, मतलब ओमेगा आपका बढ़ रहा है, एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग मतलब ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। इसका गारंटी मतलब क्या है, आपका जो एक्सीलरेशन, देखो मैं तुम्हें लीनियर के पास चलते हैं फिर यहाँ का समझोगे। अगर गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा है, तुम एक कार चला रहे हो, कार की स्पीड बढ़ रही है, दैट क्लियरली मीन्स व्हाट, तुम एक्सीलरेट कर रहे हो, यू आर एक्सीलरेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ है तो स्पीड ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज, एंड इफ इट इज ऑपोजिट स्पीड विल डिक्रीज। तो एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग बोला है, मतलब ओमेगा बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। सो अल्फा इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, क्योंकि बढ़ रहा है, तो अल्फा का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वही क्रॉस। बट अगर तुम्हें दिया हुआ है एंगुलर स्पीड डिक्रीजिंग, इसी केस में ये 1 है ये 2, इसी केस में बोला है एंगुलर स्पीड इज डिक्रीजिंग। कब घटेगा एंगुलर स्पीड, ओमेगा घट रहा है जब अल्फा तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इफ यू आर रिटार्डिंग तभी ना एंगुलर स्पीड घटता है, तो रिटार्डेशन अगर आप कर रहे हो तब अभी अल्फा ओमेगा का डायरेक्शन किस तरफ था, ओमेगा वाज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो अल्फा का किस तरफ हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, उल्टा, उल्टा डायरेक्शन में होगा तभी तो रिटार्डेशन होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। अब केस 2 में एंटी क्लॉकवाइज है, सपोज यहां पे बोल रहा है कि एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग, एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग, मतलब अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्योंकि बढ़ रहा है, तो ओमेगा किस तरफ था, डॉट, तो अल्फा भी किस तरफ होगा, डॉट। एंड सेकेंड केस में इफ इट इज गिवन एंगुलर स्पीड डिक्रीजिंग, एंगुलर स्पीड डिक्रीजिंग, इसका मतलब ओमेगा किस तरफ था, डॉट, और अल्फा किस तरफ हो जाएगा, ऑपोजिट में, क्योंकि घट रहा है ना, तो उल्टा डायरेक्शन में। सो अंडरस्टूड हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ omega, angular velocity and angular acceleration in case of circular motion. Am I clear to everybody? Now let's move on to the next part. तो अभी हमने तो डायरेक्शन के बारे में अच्छे से जान लिया, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो कब होता है। सबसे पहला पॉइंट एंगुलर, ये की पॉइंट्स हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। समझाते हैं कैसे होता है। मान लो दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज अ कांस्टेंट, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, एंड वी ऑल नो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज व्हाट, जीरो, दैट्स व्हाई योर अल्फा बिकेम जीरो। अंडरस्टूड। तो ये तो हो गई आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बातचीत। उसको छोड़ के सर्कुलर मोशन में क्या होता है थोड़ा बताते हैं। इन सर्कुलर मोशन जो तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना, लीनियर वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो, लीनियर वेलोसिटी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। जब सर्कल में घूम रहे हो, सोचो अपना कार को, यू आर ड्राइविंग योर कार इन सर्कुलर मोशन, सो इट्स मतलब जरूरी नहीं है कि यू ड्राइव इन अ सेम स्पीड। तुम सोचो 40 के स्पीड में ही घूम रहे हो, चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप 50, 40, 60 चेंज कर किए जा रहे हो। तो इन सर्कुलर मोशन लीनियर वेलोसिटी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, और इरेजर से थोड़ा इरेज कर देते हैं, थोड़ा गलती हो गया, मे और मे नॉट बी
कांस्टेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, बट द डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस, बट डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस। आप सोच रहे होगे सर क्या बोल रहे हैं, सी व्हाट हैपेंस एक्चुअली, कंटिन्यूअसली चेंजेस, ठीक है ना। लेट मी टेक अ शेप, लेट मी टेक अ सर्कल अगेन, ठीक है, लेट मी टेक अ सर्कल अगेन। तो अभी यहां पे क्या हो जाएगा, देखो आप लोग, हमने ले लिया सर्कल। अब इस सर्कल में हर तरफ हमेशा डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा वेलोसिटी, ठीक है ना, हमेशा डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। सपोज इस जगह पे बात हो रहा है तो लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल रहेगा, इस जगह पे अपना वेलोसिटी रहेगा डायरेक्शन, इस जगह में अपना, इस जगह में अपना, इस जगह पे अपना। सो द डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग और नॉट, ठीक है ना, डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, ये तो तुम लोग को दिख रहा है। इसका मतलब एक्सीलरेशन भी चेंज होगा, बिकॉज एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, एक्सीलरेशन डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, बिकॉज वो वेक्टर है ना, तो वो दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर डायरेक्शन, सोचो मान लो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन बदलेगा, पक्की बात है। बट अगर भी मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, मतलब सोचो जैसे मैंने बताया 40 में ही घूम रहे हो कांस्टेंट, फिर भी एक्सीलरेशन बदलेगा, बिकॉज द डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। पूछेगा व्हाई इन सर्कुलर मोशन acceleration continuously changes, because the direction continuously changes, hence the body will be accelerating, okay, because the linear direction of linear velocity keeps on changing, clear, or any direction. So यहाँ पे in circular motion acceleration can never be zero. कौन सा acceleration? linear acceleration, linear acceleration can never be zero, क्योंकि velocity की direction बदलती है तो कभी भी, ठीक है ना। but लीनियर एक्सेलरेशन कैन बी रिजॉल्व इनटू टू पार्ट्स, ऐसा नहीं कि लीनियर एक्सेलरेशन एक ही पार्ट है, लीनियर एक्सेलरेशन इज अगेन रिजोल्यूटेड इनटू टू पार्ट्स, एंड दोज टू पार्ट्स आर नथिंग बट, वन इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ए टी, और एक हो जाता है आपका क्या, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल को और भी बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कुछ किताबों में दिखा रहता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, centripetal acceleration AR, okay, so these can be two types of acceleration which is generally found, मतलब linear acceleration जो resolute होता है in these two type of acceleration. तो first of all let us understand what is tangential acceleration. So the component of linear acceleration, component of linear acceleration जो कि हम A बोलते हैं, okay, in tangential direction, that is known as what, that is your tangential acceleration, okay, and component of linear acceleration towards center या तो radius, towards center या तो बोल सकते हो along radius, ये अपना क्या हो जाता है, दैट इज नथिंग बट योर रेडियल एक्सेलरेशन, ओके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट बोथ, तो चलते हैं आगे। सो नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस वजह से होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस वजह से होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज बिकॉज दिस कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन लीनियर स्पीड, व्हाट आई कैन राइट, दिस कंपोनेंट is responsible for change in linear speed. अभी पहले मैं लिखवा देता हूं and then I will explain with diagram, okay. linear speed मतलब ये किसको कंट्रोल करता है, that is nothing but rate of change of speed को कंट्रोल करता है, टेंजेंशियल वाला, क्योंकि हमारा स्पीड सेंटर के साथ कुछ लिंक ही नहीं है। हमारा कार का एक्सेलरेशन अब जब हम सर्कल में घूम रहे हैं, दैट इज अलोंग द टेंजेंट, हम किस हिसाब से हमारा स्पीड बदल रहे हैं। So tangential acceleration is directly written like this, dv by dt, ठीक है ना। तो ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दिस कैन बी जीरो, क्योंकि ये डिपेंड किस पे ऊपर कर रहा है, ये स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्योरली स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे क्या पता चलता है, इफ लीनियर स्पीड कांस्टेंट है,
लीनियर स्पीड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल ऑटोमेटिकली बिकम व्हाट, जीरो, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो, ठीक है ना। इफ, ये पहला केस है। दूसरा में क्या हो सकता है, लीनियर स्पीड इंक्रीजिंग, लीनियर स्पीड इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है लीनियर स्पीड, देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, डेरिवेटिव ऑफ इंक्रीजिंग थिंग, कोई भी चीज बढ़ रहा है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। एंड इसमें और एक चीज भी क्या होगा, डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन क्योंकि बढ़ रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ लीनियर स्पीड एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम, क्लियर। और चलते हैं तीसरा पॉइंट, मान लो लीनियर स्पीड इज डिक्रीजिंग, लीनियर स्पीड इज डिक्रीजिंग, थोड़ा पेज और बड़ा कर लेते हैं। सपोज मान लो लीनियर स्पीड इज व्हाट, डिक्रीजिंग, एट दैट पोजीशन व्हाट यू कैन डू, at विल बी व्हाट, d बाई डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो सम डिक्रीजिंग थिंग, कोई भी चीज घट रहा है उसकी डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव। उससे क्या पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी ऑपोजिट, सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अंडरस्टूड, दिस इज ऑल आइडिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी और भी थोड़ा मैं डिटेलिंग में समझाऊंगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का थोड़ा रिलेशन समझा देंगे आप लोगों को। दिस वाज नथिंग बट dv बाई dt, थोड़े टाइम पहले डिराइव किए हो, v वाज हाउ मच, r ओमेगा। अब यहाँ पे पुट करके देखते हैं, d बाई डी टी ऑफ r ओमेगा। कोई भी सर्कल में रेडियस तो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट चीज है वो बाहर आ जाता है, बाई डी ओमेगा बाई डी टी, आर बाहर आ गया, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी अपना क्या था, अल्फा था, अल्फा वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, था कि नहीं था। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज व्हाट, आर अल्फा। तो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट एंगुलर एक्सेलरेशन विथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एम आई क्लियर टू एवरीबडी, एंगुलर एक्सेलरेशन विथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कंपोनेंट ऑफ द नेक्स्ट थिंग, कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन किस तरफ, टुवर्ड्स रेडियस, इन रेडियल डायरेक्शन, इन रेडियल डायरेक्शन, या तो बोल सकते हो टुवर्ड्स सेंटर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेडियल और centripetal acceleration is called radial or centripetal acceleration, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज करने का ट्राई करते हैं, लेट मी टेक इट एज ब्लैक नाउ, ओके, बिकॉज डार्क होगा तो यू कैन सी इट बेटर। सो दिस कंपोनेंट, अब सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। दिस कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, मैंने क्या बताया था, पहला वाला अगर चेंज इन मैग्नीट्यूड के लिए रिस्पॉन्सिबल था तो दूसरा वाला क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन। दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, क्लियर, लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन का चेंज के लिए होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ए आर से, ठीक है ना। और एक फैक्ट इसके बारे में जो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता था, बट रेडियल एक्सेलरेशन कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस। डायरेक्शन मैंने बताया था, हर जगह में टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो अलग अलग डायरेक्शन होता है जब सर्कल में घूम रहे हो, तो डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस, कंटिन्यूअसली चेंजेस। अंडरस्टूड, दिस फैक्ट इज वेरी क्लियर। सो नाउ इसकी जो फॉर्मूला होती है दैट इज वेरी एम्पेरिकल, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट वी स्क्वायर बाई आर। बहुत सिंपल है, दिस वन यू हैव टू रिमेंबर, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, दिस इज अ फैक्चुअल फॉर्मूला और यू कैन से एम्पेरिकल, जिसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। या तो इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज वी वॉज वॉट, ओमेगा आर, तो ओमेगा आर का स्क्वायर करो क्योंकि वी वॉज ओमेगा आर ना,
तो v की जगह में ओमेगा आर पुट कर देने से बाई आर. So this becomes what? AR is equals to omega square R square by R. So one R got cancelled out. So this is omega square R. So either you can use this one or you can use this one. Okay. So now as we got both the accelerations, tangential as well as radial, हमें पता है सर्कल में जब घूम रहे हैं, अब वापस एक डायग्राम मैं बनाऊंगा यहाँ पे. सर्कल में whenever you are, suppose I am taking a circle like this. Okay. सो नाउ सर्कल तो मैंने बना दिया. अभी यहां पे देखो किस तरह से होगा. सेंटर यहां है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? इट विल बी अलोंग टेंजेंट. सो दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. क्लियर? रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अलोंग रेडियस. सो रेडियल मतलब ए आर इस तरफ है. जब यू आर हैविंग टू कंपोनेंट्स, the net will be where? Somewhere in between. The net will be somewhere in between. So it will be like this, forming an angle theta with tangential acceleration. It will form an angle theta with tangential acceleration. और ये अपना क्या हो जाता है? A net. या तो इसको क्या बोल सकते हैं? Linear velocity. Sorry, linear acceleration. So A can be stated as your linear acceleration. A को यहाँ पे अपना linear acceleration बोलते हैं, which is nothing but resultant of AT and AR. AT अपना हो गया tangential acceleration and AR हो गया तुम्हारा radial acceleration. But because that is resultant of both, it can be written as what? Root over of AT square plus AR square. Understood? इट कैन बी रिटन लाइक दिस. तो इसको हम लोग और थोड़ा कभी कभी कोई कोई बुक में क्या, AT वॉज वॉट? DV बाई DT होल स्क्वायर. AR क्या निकला था? V स्क्वायर बाई R का होल स्क्वायर. क्लियर? सो A कैन बी रिटन एज DV बाई DT. हमारा क्या था? हमने निकाला था फॉर्मूला. इट वॉज R अल्फा. ओके, यू रिमेंबर? AT वॉज DV बाई DT विच वॉज नथिंग बट R अल्फा. ये रिलेशन आया था ना हम लोग का थोड़े पहले. एंड AR was what? V square by R or else omega square R. ये भी रिलेशन आया था थोड़ा टाइम पहले. So this can be written as omega square R इसका whole square. Clear? So this is all about your acceleration. ये तीनों में से कुछ भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. Among all three, any of the one you can use. Now we have to understand what is this angle theta. So I can take tan theta. tan थीटा हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस. तो थोड़ा सा भी देखो यहाँ पे दिस इज थीटा. तो यहाँ पे मैं अगर इस ट्राइंगल को क्लोज करूंगा, सो नाउ थीटा के ऑपोजिट में जो होता है दैट इज द परपेंडिकुलर और नॉट? एंगल जो है थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर. सो दिस वन इज पैरेलल विथ हुम? AR. सो परपेंडिकुलर के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? AR. एंड बेस कौन है? AT. तो AR बाई AT दैट इज tan थीटा. सो थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स AR by AT and this is closed. Clear? Next, after this we have to understand the types of circular motion. ये तो समझ गए. Now types of circular motion, let me give the heading. Types of circular motion. So सबसे पहले हम लोग क्या दे देंगे? केस 1 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. केस 1 इज व्हाट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. फर्स्ट वन इज योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म अपने आप में मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है एंड एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है. क्यों कांस्टेंट हो गया? देखो, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर. अगर ओमेगा कांस्टेंट है, रेडियस तो हमेशा से कांस्टेंट है, रेडियस तो नहीं बदलता कभी भी सर्कल का, तो ओमेगा और आर दोनों कांस्टेंट, तो v भी कांस्टेंट. ये दोनों गिवन है, समझ रहे हो? तो अगर मेरा v कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो सब एक एक करके समझते हैं, ठीक है ना? इफ वी नो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता था हमारा? d बाई डी टी ऑफ v, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल था फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी. सो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आया मेरा? 0. ठीक. ओमेगा भी कांस्टेंट. इफ ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट, कुछ और डिपेंड करता था. अल्फा वाज व्हाट? डी ओमेगा बाई डी टी.
वो भी क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो। तो इसमें जो कंक्लूजन आ रहा है, कंक्लूजन को हम लोग यहां लिखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है अपना गिवन है, दिस इज व्हाट, दिस इज माय गिवन स्टैट्स। अब हम लोग कंक्लूजन को जब समझेंगे तो कंक्लूजन में हमारा क्या क्या आ रहा है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मिल गया कंक्लूजन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज जीरो, फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन एंगुलर एक्सीलरेशन भी जीरो। सेकेंड कंक्लूजन क्या आ रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो। बट जो तीसरा है नॉर्मल एक्सीलरेशन क्यों जीरो होगा भला, मैंने बताया था रेडियल एक्सेलरेशन तो कभी जीरो नहीं हो सकता। रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या था अपना, जो था v²/r और एल्स ω² r, क्योंकि उसमें तो ना डेरिवेटिव कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो वो नहीं जीरो होगा। सो और हमारा जो a नेट निकालेंगे, नेट लीनियर एक्सेलरेशन इज व्हाट, at² प्लस ar²। तो at तो अपना जीरो है, तो 0² प्लस ar², तो a विल बिकम हाउ मच, ar, क्योंकि ar² का रूट हट जाएगा। सो हमारा जो तीसरा और चौथा कंक्लूजन है वो क्या है, तीसरा कंक्लूजन ये है कि ए आर एज इट इज रहेगा विच इज v²/r और एल्स ω² r। एंड जो फोर्थ कंक्लूजन है दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेडियल एक्सेलरेशन, समझ गए, विच इज इक्वल्स टू v²/r और ω² r। क्लियर, ये चार चीज कंक्लूजन है। डन, नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, केस 2। वेट अ सेकेंड, केस 2, केस 2 इज ऑफ व्हाट। अच्छा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और चीज मुझे, सॉरी आई फॉरगॉट टू से यू फ्यू थिंग्स, डायरेक्शन थोड़ा बहुत तुम्हें बता देते हैं ना, यहाँ पे लास्ट वाला केस का डायरेक्शन नहीं बताए थे। सो लेट मी से यू फ्यू डायरेक्शंस इन दिस केस, ठीक है ना। अभी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने बताया उसका थोड़ा बहुत मैं तुम्हें स्टैट्स बता देता हूँ, कैसे कैसे हम लोग को जानना है। सपोज दिस इज अ सर्कल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही एक्सप्लेन करेंगे तुम्हें यहाँ पे। हमारा क्या था, वेलोसिटी किस तरफ होगा, टेंजेंशियल, मान लेते हैं वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है, तो लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, सॉरी हाँ, तो दिस इज लीनियर वेलोसिटी इस तरफ। मान लेते हैं कि बॉडी सर्कुलर क्लॉकवाइज घूम रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज अ एग्जांपल, जस्ट अ बेसिक एग्जांपल। और एग्जांपल में गिवन बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर, बॉडी इज मूविंग क्लॉकवाइज, तो वेलोसिटी ले लिया उस तरफ, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन उस तरफ हो रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है नहीं, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता तो उस तरफ होता है, तो खाली रेडियल एक्सेलरेशन है। तो रेडियल एक्सेलरेशन किस तरफ, नीचे की तरफ, तो ए आर। तो फिर नेट एक्सेलरेशन भी किस तरफ, नीचे की तरफ, बिकॉज ए वाज इक्वल्स टू ए आर, और दोनों के बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है, v टेंजेंशियल है, v का डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल। ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, मैंने बताया था स्क्रू रूल, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाने से स्क्रू किस तरफ जाता है, अंदर की तरफ, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अल्फा तो ऑलरेडी जीरो है, तो अल्फा का कोई डायरेक्शन नहीं है, टेंजेंशियल भी जीरो है तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और नॉर्मल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ, टुवर्ड्स सेंटर। और नेट एक्सेलरेशन ए आर का अगर पूछेगा तो क्या लिखोगे, टुवर्ड्स सेंटर, जो कि रेडियल एक्सेलरेशन था। और नेट लीनियर एक्सेलरेशन, ए वाज व्हाट, लीनियर एक्सेलरेशन, वो भी क्या हो गया, टुवर्ड्स सेंटर। क्लियर, क्वेश्चन आने से किस तरह से अप्रोच करोगे, इसलिए मैंने डिटेल्ड एनालिसिस दे दिया तुम्हें। अभी नेक्स्ट, अभी चलते हैं केस 2 के पास अपने, है ना। सो नाउ कम, लेट्स कम टू केस नंबर 2। ये अगर ढंग से सीख लेना चैप्टर आगे बहुत इजी हो जाएगा तुम लोग के लिए। तो केस 2 इज योर एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। सो व्हाट इज योर एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेट अगर कर रहा है का मतलब है, सीधी सीधी बात है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो गिवन में यहां पे क्या क्या हो जाएगा, गिवन में एक्सेलरेटेड बोला है तो मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग। जब भी एक्सेलरेट करते हो तो भाई स्पीड तो बढ़ेगा ही ना। सो ये दोनों हमें दिया हुआ है। तो और इंक्रीजिंग, बिकॉज इट इज सेड इंक्रीजिंग, तो हमें पहला कंक्लूजन जो यहां से मिलता है
फर्स्ट कंक्लूजन, अगर वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है, ठीक है, देन डेफिनेटली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैंने बताया था। तो AT इज इन डायरेक्शन ऑफ v। सिमिलरली अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा वॉज डी ओमेगा बाई डी टी, तो अल्फा इज इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ये पहला कंक्लूजन जो हमें मिल गया यहां से। अब आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो लेट्स चेंज लिटिल बिट कलर ऑफ आवर मार्कर, काफी रेड रेड हो गया, थोड़ा ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, अब यहां पे क्या होगा, दोनों आएंगे। तो सबसे पहला मेरा लिख देते हैं AT क्या होगा, हाँ भाई ये dv बाई डी टी, बिकॉज वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, जीरो नहीं हो सकता। अल्फा भी क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी, वो भी बढ़ रहा है, जीरो नहीं हो सकता। एंड रेडियल तो हर टाइम सिंपल सा आंसर है, v²/r इक्वल्स टू ω²/a, ये तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो मेन है नेट एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, दैट इज व्हाट, AT² प्लस AR², वो रहेगा ही। मुझे एक छोटा सा चीज बताना था, बहुत बार AR इज रिटन एज AN ऑल्सो, नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, कुछ कुछ किताबों में नॉर्मल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो रिटन। सो A इज व्हाट, A is nothing but your root over of, so it can be written as A so A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ AT² प्लस AR²। तो अभी इस बार कोई भी जीरो नहीं हो रहा है, इनफैक्ट सारे के सारे वैल्यूज आ रहे हैं, बट खाली हमें, और यहाँ पे tan थीटा भी जान सकते हैं, tan थीटा विल बी व्हाट, AR/AT, सब वैल्यूज आएंगे। अभी थोड़ा डायग्राम में मैं तुम्हें डिटेलिंग बताऊंगा। Suppose, sorry, I have to take a circle, I did a wrong circle. Let me take a circle. Wait a second, शेप थोड़ा बढ़ाते हैं, छोटा सर्कल हो गया, सर्कल। This OneNote I am been using for the first time ना, that's why little bit blunder हो रहा है। I got my circle, ठीक है। अब यहाँ पे सबको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो लेट मी टेक इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, कौन किस डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि वेलोसिटी, एक एग्जाम्पल, ये केस स्टडी है, ठीक है ना। मैं बोल देता हूं पार्टिकल मूविंग क्लॉकवाइज, ये दिया हुआ है, जो भी ले लो, एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लोगे तो क्लॉकवाइज, जो भी ले लो, मैंने ले लिया क्लॉकवाइज। चलो, तो मेरी वेलोसिटी किस तरफ होगी, इस तरफ, क्योंकि क्लॉकवाइज है ना भाई पार्टिकल, तो वेलोसिटी इज इन दैट डायरेक्शन। एंड बॉडी क्या बोल रहा है, एक्सीलरेटिंग, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी रहेगा, सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑल्सो दैट डायरेक्शन, AT। समझ गए, वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में रहेगा तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्लियर। और नॉर्मल एक्सेलरेशन किस तरफ रहता है, अंदर की तरफ, दिस विल बी व्हाट, AR, रेडियल एक्सेलरेशन, क्लियर। तो नेट एक्सेलरेशन किस तरफ आएगा, इस तरफ, एंड दैट विल बी एट एंगल थीटा विथ टेंजेंशियल, जो कि थीटा हमने बताया है क्या है। अब यहां पे सबसे पहले वेलोसिटी जो है अपना क्या है, टेंजेंशियल, ठीक। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या है, टेंजेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी, ठीक है ना, एज v वेक्टर। अब आता है AR, टुवर्ड्स सेंटर, ये तो भाई हर तरफ टुवर्ड्स सेंटर रहेगा कभी भी, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा कौन आ जाता है, ओमेगा। ओमेगा कैसा होगा, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो स्क्रू किस तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर, तो टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर। अब अल्फा भी टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर, इस वजह से, बिकॉज ये एक्सीलरेटिंग बोल रहा था, ओमेगा बढ़ रहा है, तो अल्फा का भी डायरेक्शन, एक्सीलरेटिंग केसेस में क्या होता है, ओमेगा एंड अल्फा आर इन सेम डायरेक्शन, क्लियर, ठीक। अब लास्ट केस 3 पहुंचते हैं हम लोग। केस 3 के बाद विल स्टॉप दिस वीडियो।
ठीक है. After that, I'll be sending you one more video which will purely contain questions so that you will get more elaborated with that. Case 3 is retarded circular motion. Retarded circular motion. And I'm saying if you once complete this video properly, that means you are well trained for entrance also. You can solve any question from any book of entrance, any entrance book you can solve. तो ध्यान से समझो. रिटार्डेड सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या होता है गिवन में? रिटार्डेड मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, घट रहा होगा ना स्पीड, रिटार्डेशन हो रहा है. एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो व्हाट? डिक्रीजिंग. ये भी आपका घट रहा होगा, दोनों ही घट रहे हैं. ठीक है ना. सो अभी यहां पे समझना पड़ेगा पहला कंक्लूजन क्या हो सकता है. सो द कंक्लूजन, तो यहां पे इनिशियल कंक्लूजन जो आता है, रिटार्ड हो रहा है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही डिपेंड करता है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर. एटी वेक्टर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर. एंड ओमेगा किस पे कौन डिपेंड करता है? ओमेगा के ऊपर, अल्फा. तो अल्फा इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर. ठीक. तो अब डेप्थ में साथ थोड़ा जाते हैं, तो यहां पे कौन कौन आएगा और क्या आएगा वो देख लेते हैं. सबसे पहला बात तो जनरली 80 तो अपना dv बाई dt डिक्रीज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है. नेगेटिव आया, इसी से ही समझ में आता है कि टेंजेंशियल का जो डायरेक्शन है दैट विल बी ऑपोजिट टू वेलोसिटी वेक्टर. नेक्स्ट किसको? अल्फा डी ओमेगा बाई dt, ये भी नेगेटिव आएगा. नेगेटिव से हमें ये पता चलता है वो ओमेगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक. ए आर तो बिंदास से अपना, उसका वैल्यू कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा से आएगा ही आएगा. एंड लास्ट में ए नेट जो कि लीनियर एक्सेलरेशन है, वो भी बिकॉज दोनों हैं तो ए टी स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर हो जाएगा. एंड जो टैन थीटा अपना है विल बी व्हाट? ए टी बाई ए आर बाई ए टी. सॉरी, आई डिड अ ब्लंडर हियर. लेट मी रेज. I guess by mistakenly I have done the same error earlier also. Let me rectify. No, that there I have written correct. This is what? AR by AT. So theta is what? Tan inverse AR by AT. ये तो आ गया. अब एक केस स्टडी लेके समझना पड़ेगा. डायरेक्शंस का खेल है मेन सब यहाँ पे. So let us take a case study. तो let me take an example. और मैं बोल दिया हूं पार्टिकल इज मूविंग, यहां पे थोड़ा उल्टा लेते हैं, पार्टिकल इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं. 2 क्लॉकवाइज कर लिए, एक एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेते हैं, है ना. सो एक सर्कल लेना पड़ेगा, तो लेते हैं एक सर्कल. ठीक है. तो सर्कल हो गया. अब इसमें समझते हैं क्या क्या. पार्टिकल इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा घूम रहा है, तो ऊपर वाले टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखते हैं वेलोसिटी किस तरफ से होगा? इस तरफ से होगा. सो दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेगेटिव था, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? सो माय टेंजेंशियल डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जब एक्सेलरेटिंग था इन द सेम डायरेक्शन था. लीनियर एक्सेलरेशन अपना कहाँ पे होगा? सॉरी, रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर. ए आर अपना इस तरफ होगा, तो नेट किस तरफ आएगा? इट विल कम इन दिस डायरेक्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? द नेट विल कम इन दिस डायरेक्शन. और यहां पे थीटा जो होगा, दिस वन विल बिकम थीटा, क्योंकि लास्ट केस में हमने थीटा क्या किया था? वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही टेंजेंशियल था. ध्यान से समझो थोड़ा, इसी बात का ही गलती करोगे. लास्ट केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो हम वहां से थीटा लिए थे एक की तरफ. तो इस बार भी मान 80 ऑटोमेटिकली नेगेटिव आया तो उस तरफ आया, बट एंगल कहाँ से मेजर किया जाएगा? ऑलवेज फ्रॉम V ओनली. तो V से A का एंगल ये थीटा, ये बड़ा वाला एंगल थीटा दिखेगा यहाँ पे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा ओमेगा का डायरेक्शन. ओमेगा का डायरेक्शन किस तरफ होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. स्क्रू का एंटी क्लॉकवाइज घुमा हो तो स्क्रू बाहर निकलता है, तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब डॉट आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर. तो अल्फा क्या हो जाएगा? उसके ऑपोजिट में. डॉट का ऑपोजिट क्या होता है? क्रॉस इनटू प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि अल्फा भी नेगेटिव आया था. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू माइट बी इनफ क्लियर
about circular motion and its basic dynamics. Okay, और थोड़ा ज़्यादा डायनामिक्स अबाउट सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, कोनिकल इक्विलिब्रियम, पेंडुलम एंड मेनी अदर थिंग्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, एवरीथिंग विल बी टॉट इन द नेक्स्ट वीडियो. ये बेसिक वाला है, बट ये बेसिक में भी बहुत डेप्थ है एंट्रेंस के लिए. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. ठीक है, सो नाउ लेट्स वाइंड इट अप.